Okay, let's start our session with a prayer. Keep close your eyes, join your hand and chant with me. Om Sangachatam Sambodhatam Sambho Manasi Vijanatam Devavagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sarirasya Javadakinam Yopakarutam Prabhuram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tashmi Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Make it little bit warm. And put on your eyes. And gently open your eyes. My screen is visible now. Okay. So today we will start from the Vedic period. Any doubt? कल का जो हुआ था, किसी का कुछ प्रश्न है? देविका, इशिका, कुछ क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो you are on mute. Devika, I think you are trying to say anything, but you are on mute. Kindly unmute yourself. ম্যাম কালকে রেকর্ডটা পেলে ভালো হয়। আচ্ছা ওগুলো সব পেয়ে যাবে, এই উইকের এন্ডেই তোমরা সব পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? সব ক্লাসেরই রেকর্ড তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, so today we will start from the Vedic period. Okay, this period is marked with the emergence of Vedas. The Vedas are knowledge par excellence, the form of the basis of Hinduism. There are 4 Veds. क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो हम लोग बोलते हैं ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ठीक है? So the Vedas are generally divided into 2 sections, that is Karma Kanda and Gyan Kanda. ठीक है? Gyan Kanda means knowledge portion. The Upanishads are contained in the knowledge portion of the Vedas. The germ of concept of yoga are widely available in the Upanishads. So हम योगा के बारे में उपनिषद में सब कुछ जान सकते हैं। उपनिषद में योगा के बारे में बोला गया है, डिटेल्स में है, सब कुछ है। देखना उपनिषद में है, भगवत गीता में है, योगा के बारे में बहुत चर्चा किया गया है। उपनिषद, भगवत गीता, बहुत कुछ। The Vedas contain the oldest known yogic techniques called the Vedic yoga. So what is Vedic yoga? जो वेद में जो oldest yogic techniques है वही है Vedic yoga, ठीक है? देविका, kindly mute yourself.
द वेदास ऑन, जो वेद में जो योगा का टेक्निक्स है, दैट इज कॉल्ड वैदिक योगा. ओके. During this period, the people relied on the dedicated Vedic yogis to teach them how to live in divine harmony. So, तब क्या था, तब spiritual practice ज्यादातर होता कि how to get spiritually जो हम लोग को benefits मिलता है योगा में, वो practice ज्यादातर होता था वो वेद के काल में. ठीक है. तो धीरे धीरे सब चेंज होते गया. तो उसके बाद सब ठीक हुआ. The rishis were also gifted with the ability to see the ultimate reality through their intensive spiritual practice. It is also during this days that the yogis living in secularism became known. So इतना तक कल हुआ था. तो आज उपनिषद में क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज उपनिषद? उपनिषद बोला जाता है कि उपविष्ट होके सदगुरु से पास शिक्षा लेना, दैट इज उपनिषद. ओके. सो व्हाट इज उपनिषद? उपविष्ट होके सदगुरु के पास शिक्षा लेना ही है उपनिषद. ठीक है. यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मगर मैंने बोल दिया कि व्हाट इज उपनिषद. तो उपनिषद आर कंक्लूडिंग पोर्शन एंड एसेंस ऑफ द वेदास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा जो भी कुछ है लेवल 1 में, तब तुम लोग देखना कि उपनिषद आर द कंक्लूडिंग पोर्शन. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड वेदांत. So what is Vedanta? Vedanta means Upanishad. Okay. Vedanta means Upanishad. The Upanishad describe the inner vision of the reality resulting in the intense self-inquiry. These expound upon 3 subjects. क्या क्या है उपनिषद में, क्या क्या किसके किसके बारे में बोला गया है? 3 विषय के बारे में बोला गया है. तीनों विषय क्या क्या है? द जीव, जगत एंड ईश्वर. ये जिनके पास स्टडी मटेरियल है ये लाइन अंडरलाइन कर ले, जिसके पास नहीं है तो ये लाइन लिख ले. सो दिस एक्सपाउंड अपॉन 3 सब्जेक्ट. क्या क्या है उपनिषद में? द जीव, जगत एंड ईश्वर. The climax of the inquiry is the experience of the essential identity of an individual soul. आत्मा, soul मतलब हम लोग जानते हैं आत्मा. Within the ultimate reality, ब्रह्मांड. Ultimate reality क्या है? That is होचे ब्रह्मांड. That is ब्रह्मांड. The Upanishad expound the teachings of the Vedas. They took the idea of ritual sacrifice from the earlier part of the Vedas and internalized it and teaching the sacrifice of the ego to self-knowledge. हम लोग ईगो में बहुत कुछ कर लेते हैं. ईगो जब होता है बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है. तो ईगो को कैसे अलग रखना है यही बोला गया है उपनिषद में. ठीक है. So ego is not good thing for us. Ego क्या अच्छा है देविका? ईगो की ভালো? ईगो ভালো নয়. ईगो হলেই যত প্রবলেম স্টার্ট হয়, তাই তো? সো সেটাই বলা হয়েছে যে এই বলা गया है कि ईगो को अलग करने के लिए, खुद से ईगो को अलग करने के लिए देखना बहुत सारा प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाता है. तो सिर्फ जो वेद पीरियड है ये बोलना है. जो वैदिक पीरियड में किसके बारे में बोला गया है? दैट इज उपनिषद के बारे में बोला गया है. ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि वैदिक पीरियड में किसके बारे में चर्चा किया गया है? दैट इज उपनिषद. उपनिषद में क्या क्या है मैंने बोल दिया कि जीव, जगत और क्या है देविका? ईश्वर है मैम. ओके, वेरी गुड इशिका. सो ये 3 है. इशिका काइंडली कैमरा ऑन करो तो क्लास बहुत अच्छे से होता है. यस.
मैम मैं बाहर में हूँ एंड लाइक यहाँ का ओके कंडीशन इसलिए। ओके ओके, नो इशू नो इशू, ओके। तो यही बोला गया है वैदिक पीरियड में। और क्लासिकल योगा में अभी क्या होगा कि सेल्फ नॉलेज, एक्शन, कर्म योगा एंड विजडम, ज्ञान योगा, yoga practices, particularly meditation, are also found in Buddhism and Jainism. कर्म योगा, ज्ञान योगा के बारे में देखना, इसके बाद थोड़ा 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 करके हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में लेवल 1 में नहीं है, मगर एक दिन मैं चर्चा करूंगी, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में योगा के बारे में क्या बोला गया है, थोड़ा सा एक दिन चर्चा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्लासिकल योगा। दिस योगा पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्लासिकल योगा पीरियड, इन द प्री क्लासिकल एरा, yoga was an incoherent mixture of various ideas, beliefs, and techniques that often conflicted and contradicted each other. The classical period is defined by Patanjali Yoga Sutras. So Patanjali योग सूत्र का टाइम पीरियड क्या है? दैट इन क्लासिकल योगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि पतंजलि योगा सूत्र के योगी काल में कब चर्चा किया गया या बोला गया है? दैट इज इन क्लासिकल योगा पीरियड। अभी जो समय सीमा है वो हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योगा, पतंजलि योग, पतंजलि ने, सेज पतंजलि योग को एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो हुआ क्लासिकल योगा पीरियड में। पहले भी योगा प्रैक्टिस होता था मगर उतना सिस्टमेटिक नहीं होता था, मगर क्लासिकल योगा पीरियड में जब से पतंजलि योगा का इंट्रोड्यूस किया तो एक सिस्टमेटिक वे में हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम, क्या है? रिटन समटाइम बिटवीन द 3rd and 6th century BC। ये टाइम याद रखना होगा, ठीक है। थ्योरी के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ पतंजलि योग सूत्रस। सो पतंजलि योग सूत्र का टाइम क्या है? बिटवीन द 3rd and 6th century BC। This text describes the path of Ashtanga Yoga. So Patanjali, sage Patanjali introduced क्या किया? That is Ashtanga Yoga, often called classical yoga। इसलिए मैंने बोला कि classical yoga period is very important, ठीक है, बिकॉज इसी समय में अष्टांग योगा के बारे में बोला गया है। तो किस समय अष्टांग योगा के बारे में बोला गया है? हम लोगों को बोलना है क्लासिकल योगा पीरियड में। एंड व्हाट इज द टाइम? दैट इज द टाइम बिटवीन द 3rd and the 6th century BC, ठीक है। So Patanjali organized the practices of yoga into 8 limb paths। अष्टांगा क्या है? अष्टांगा मतलब 8 लिम्ब, ठीक है। सो इसको बोला गया है 8 लिम्ब पाथ। 8 अष्टांग योगा में क्या क्या है, 8 जो भाग है, ये हम लोग अभी थोड़ा सा है इधर, बाद में बहुत कुछ है, ठीक है। Containing the steps and stages towards obtaining samadhi or enlightenment। So, अष्टांग योगा का अल्टीमेट है समाधि, ठीक है। सो अष्टांग योगा का अल्टीमेट क्या है? अभी देखो ये 8 लिम्स जो है ये एकदम अच्छे तरह से याद रखना है, 8 लिम्स जो है क्या क्या है? यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये है 8 लिम्स। यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यामा क्या है? सोशल डिस्टेंस मतलब क्या है? देखना, हम लोग बहुत कुछ चीज स्कूल में जाके नहीं सीखते हैं, लाइक हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक। ये हम लोग एकदम जब छोटे रहते थे उसी समय से हम लोग
जानते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, दैट इज यमा। ओके, हम लोग करते हैं। तो ये तो स्कूल में नहीं सिखाता है कि हाँ तुम लोग का ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, सुबह उठना है, रात में सोना, ये तो नहीं है। हम लोग एकदम छोटे से ही अपने पेरेंट्स को देख के ये सब सीखते हैं। तो दैट इज यमा। एकदम आसान भाषा है ये यमा। नियमा क्या है? नियमा में है 5 चीज। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानै। सो शौच, संतोष, तप, श्रद्धाय, ईश्वर प्रणिधानी। शौच, संतोष, तप में मतलब क्या है? शौच मतलब खुद को क्लीन रखना, क्लीनलीनेस। ठीक है, मतलब हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दैट इज कॉल्ड शौचोस। ओके, संतोष, तपा, हम लोग जो भी करते हैं दैट इज कॉल्ड तपा। ठीक है, ईश्वर प्रणिधानी क्या होता है? स्वाध्याया। ईश्वर प्रणिधानी क्या होता है? हम लोग कुछ ज्ञान के लिए जो पढ़ते हैं दैट इज, वो भी नियमा में आता है। ठीक है, तो यमा नियमा। उसके बाद आता है आसना। ये हम लोग जानते ही है, फिजिकल पोस्चर। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? कंट्रोल टू लाइफ फोर्स थ्रू ब्रीथ कंट्रोल और रेगुलेशन। प्राणायाम मतलब प्राण जो है, प्राणा वायु जो है उसको कंट्रोल करना, उसको ठीक करना, दैट इज प्राणायाम। और प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 3 पूरा अलग है मगर सुनने में एक ही लगता है, दैट इज प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ठीक है, प्रत्याहार मतलब मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, तो देखना मेडिटेशन में जब तुम लोग बैठते हो तो बहुत सारा कुछ चिंता आता है मन में। आज ये काम नहीं हुआ, ये बाकी है, कल मुझे वो करना है, ये बहुत सारा कुछ आता है। मगर हम लोगों को क्या करना है? वो सब चिंता बाहर रख के मेडिटेशन में ध्यान लगाना है, दैट इज प्रत्याहार। सेंस विथड्रॉल। सेंस हमारा क्या क्या है? 5 सेंसेस। ठीक है, 5 सेंसेस को एकदम खुद से अलग करना। 5 जो सेंस है, पंच ज्ञानेंद्रिय को अलग करना, तब देखना मन में कोई चिंता नहीं आता है, दैट इज प्रत्याहार। ठीक है, उसके बाद आता है धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। हम लोग सोचो, हम लोग जब मेडिटेशन में बैठते हैं, मेरे सामने एक कैंडल रखा हुआ है। ठीक है, तो कैंडल जब रखा हुआ है, मैं क्या करूंगी? मैं अभी बोल रही हूँ प्रत्याहार के बारे में। ठीक है, मैं क्या करूंगी? जब मन में जो चिंता है, मैं सब कुछ बाहर करके मैं ट्राई करूंगी कि कैंडल की तरफ देखना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। धारणा क्या है? धारणा सब जो सेंसर्स अलग हो गया है, मन में कोई चिंता नहीं है, अब मैं कैंडल को ही देख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड धारणा, कंसंट्रेशन। ध्यान, मेडिटेशन। अभी कैंडल कोई देख रही हो और जो बाकी कुछ है आसपास, मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ध्यान। एंड व्हाट इज समाधि? जब कैंडल और मैं एक हो गई हूँ, मेरे और कैंडल के बीच में कुछ अलग नहीं है, दैट इज कॉल्ड समाधि। ये क्लियर है इतना तक? 8 लिम्स एकदम क्लियर रखना होगा। ठीक है, 8 लिम्स का जो कॉन्सेप्ट है,
ये अष्टांग योग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर करना होगा। सबको मैं बोल रही हूँ, सबको कि ये क्लियर करना होगा। तो 8 लिम्स और एक बार बता दे रही हूँ कि अष्टांग योगा में क्या क्या है। यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सो प्रत्याहार हो गया सेंस विथड्रॉल इन प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। Dharana is concentration, dhyana is meditation, samadhi spiritual absorption. समाधि मतलब मैं एकदम खुद को समर्पण कर दिया, that is called समाधि। समाधि अल्टीमेट है, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट क्लासिकल योगा। पोस्ट क्लासिकल योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पोस्ट क्लासिकल योगा में हठे योगा के बारे में बोला गया है। सो अष्टांग योग क्या है ये लिखना है और याद भी रखना है। जो भी करना है करो कि अष्टांग योगा इज मेनली माइंड ओरिएंटेड एंड हठे योगा इज मेनली बॉडी ओरिएंटेड, ठीक है। ये दो एक डिफरेंस है अष्टांग योग और हठे योग के बीच में, ठीक है। सो अष्टांग योग स्टार्ट होता है यमा नियमा, देन आसना आता है, और हठे योगा स्टार्ट होता है आसना से, ठीक है। सो पोस्ट क्लासिकल योगा में क्या बोला गया है? Post classical yoga differs from the first three since its focus is more on the present. Harmony is empirical and is emphasized upon. At this point, we see a proliferation of literature as well as the practice of yoga. A few centuries after Patanjali, a number of yoga masters created a system of practices designed to rejuvenate the body and prolong life. मतलब पतंजलि एक सिस्टमेटिक वे में योगा को प्रेजेंट किया है, सेज पतंजलि, ठीक है। उसके बाद बहुत दिन पहले, बहुत साल बाद योगा मास्टर ने एक सिस्टमाइज जो होता है एक योगा आया, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड हठे योगा, ठीक है। सो दे रिजेक्टेड द टेक्निक्स ऑफ द एंशिएंट वेदास, though not totally, and embrace the concept of physical body as the means to achieve enlightenment. क्या हुआ पोस्ट क्लासिकल योगा में? अभी जो पहले क्या था, स्पिरिचुअली बेनिफिट्स के लिए वो लोग प्रैक्टिस करते थे, मगर पोस्ट क्लासिकल योगा में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो किसके ऊपर आया? फिजिकल बॉडी के ऊपर आया। सो दे डेवलप तंत्र योगा। तंत्र मतलब शरीर, तंत्र मतलब शरीर, which consist of radical techniques to cleanse the body and mind, to break the knots that bind us to our physical existence. तो तंत्र योगा के बारे में तब हुआ, कब हुआ? पोस्ट क्लासिकल योगा में। This exploration of physical spiritual connection and body centered, मैंने जो बोला कि हठे योगा is mainly body centered practices, led to the creation of what we today understand as हठे योगा, ठीक है। सो तंत्र योगा जो बोल रही हूँ दैट इज ऑल्सो हठे योगा। तंत्र मीन शरीर, हठे योगा में इसलिए ये तो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी ओरिएंटेड है, सो इसलिए दैट इज नोन एज नाउअडेज दैट इज हठे योगा। सो हठे योगा के बारे में कौन सा समय सीमा है? दैट इज पोस्ट क्लासिकल योगा पीरियड में हम लोग हठे योगा के बारे में जानते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है? यस मैम। तो उसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ कब से हुआ? स्वामी विवेकानंद जी के टाइम से।
योगा का जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट इज स्टार्ट हुआ स्वामी विवेकानंद जी के टाइम से। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इवोल्यूशन ऑफ योगा किस समय से किस के साथ शुरू हुआ, दैट इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद राज योगी थे, भक्ति योगी थे, कर्म योगी थे, वो सब योगी थे, ठीक है। और सबसे बड़ा भक्ति योगी कौन थे, जानते हो कोई? जो कोलकाता से बिलोंग करते हो, आई थिंक वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, वो लोगों को जानना चाहिए। भक्त योगी कौन थे? जो माँ काली को पूजा करते थे, भक्त योगी, खुद को माँ काली का आगे समर्पण कर दिया था, कौन थे? मैम वो जो एक फोटो के साथ में वो रहते हैं ना, वाइट हाँ। कलर का, उनका हम्म। नाम मुझे नहीं पता पर। इसलिए मैं बोल रही, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, लाइक देविका, शतभिषा, उन लोगों को जानना चाहिए, आई थिंक। मैम मैं भी बंगाल से ही हूँ, बट जस्ट दैट ओके। मैं बंगाली नहीं हूँ। हाँ, तो बंगाली लोग को जानना चाहिए, तो इसलिए मैं ही बोल रही हूँ। उन दोनों को मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं जानना ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके जानेंगे, ठीक है। Okay, so Swami Vivekananda's remarkable lectures in the West, especially in the Parliament of Religions held at Chicago Act 1893, marked the proliferation of yogic culture in the modern times. The eternal message of yoga emanated from the lips of the cyclonic monk had a great influence on the Western intelligentsia subsequently. So modern yoga का जो हुआ, evolution start हुआ कब से? स्वामी विवेकानंद जी के टाइम से। मगर स्वामी विवेकानंद जी के एकदम पर्टिकुलर कौन से टाइम के बाद? 1893, ठीक है। शिकागो में जो लेक्चर दिया गया था, उसके बाद ये इवोल्यूशन हुआ योगा में। Yoga and its tradition received strong inspiration and impulse due to the pioneering efforts of the several legends in India. To list the names of a few, तो कुछ कुछ नाम हम लोगों को जानना होगा। कौन कौन है? बाबाजी महाराज, स्वामी चरण लाहिरी, युक्तेश्वर गिरी, स्वामी योगानंदा, माधव दास महाराज, स्वामी कैवल्यानंद जी, जो कैवल्य धाम का है, हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है, टी कृष्णमाचारी, अष्टांग योगा। ये नाम जिनके पास स्टडी मटेरियल है, थोड़ा सा नाम अभी से याद रखो, ठीक है। स्वामी शिवानंद योगा, बीके आयनगर योगा, श्री के पतवी जोई, श्री टीवी देसिका की, स्वामी रामदेव जी, ये सबको मालूम है शायद, स्वामी रामदेव जी, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, श्री योग जी, द योगा इंस्टीट्यूट, स्वामी सत्यानंद जी, बिहार स्कूल ऑफ योगा, श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामी जग्गी वासुदेव जी, योगा ईशा योगा सेंटर। स्वामी जग्गी वासुदेव जी कौन है? मैम वो सदगुरु। यस, स्वामी जग्गी वासुदेव जी है सर। तो स्वामी रमा, महर्षि महेश योगी, श्री ओपी तिवारी, डॉक्टर नागेंद्र एचा। सो 3-4 नाम हम लोगों के नॉलेज के लिए जानना होगा कि कुछ योगी जो है उनके बारे में थोड़ा नाम जो है जानना है, ठीक है। मैम ये क्या सारे योगी को याद रखना होगा या तीन नहीं चार नहीं नहीं, सारे नहीं, 2-3-4 याद रखने से होगा, ठीक है। काफी है? हाँ, एकदम काफी है। सो 3-4 याद रखना है। तो ओके। अभी क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। सो योगा का जो टाइम है, योगा का हिस्ट्री ऑफ योगा में कोई डाउट है? 1.2 में जो हुआ
नो मैम। तो हिस्ट्री ऑफ योगा हो गया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3 गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय योगा प्रैक्टिशनर। ये शायद हम लोग थोड़ा बहुत सभी जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को एक मैट लगता है। तो बिफोर प्रैक्टिस क्या है, योगा प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द गाइडिंग प्रिंसिपल गिवन बिलो व्हाइल परफॉर्मिंग योगा प्रैक्टिसेस। बिफोर द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शौचा मीन क्लीनलीनेस, ठीक है। सो बिफोर प्रैक्टिस शौचा, खुद को एकदम साफ सुथरा रख के योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। So an important prerequisite for yoga practice, it includes cleanliness of surroundings, body and mind. देखना, एकदम हम लोग जब खुद एकदम क्लीन रहते हैं तो मन भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। तो योगा में मन लगा के हम लोग कर सकते हैं। So yoga practice should be performed in a calm and quiet atmosphere with a relaxed body and mind. तो हम लोग को योगा प्रैक्टिस करना चाहिए एकदम शांत परिवेश, एकदम शांत जब हो, जब सब चुपचाप होता है तो योगा एकदम ठीक ठाक से प्रैक्टिस होता है। नहीं तो योगा में बहुत सारा कुछ बाधा आता है, ठीक है। योगा प्रैक्टिस शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक और लाइट स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक में जो लोग कर सकते हैं वो लोग करते हैं, और नहीं थोड़ा बहुत, एकदम भरपेट नहीं करना है योगा प्रैक्टिस। थोड़ा बहुत जब होता है आफ्टर 2 hours, any meal after 2 hours, they should practice. Consume small amount of honey in lukewarm water if you feel weak. Bladder and bowel should be empty before starting yoga practices. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जिनका ब्लैडर और बावल एम्प्टी नहीं होता है, बावल मूवमेंट ठीक ठाक से नहीं होता है, देखना उस दिन बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है। सो ब्लैडर एंड बावल शुड बी एम्प्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस से पहले 1 ग्लास पानी पीना है, 1 ग्लास पानी पीना है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई भी पानी नहीं चलेगा, मगर बिफोर प्रैक्टिस 1 ग्लास पानी ठीक है, ठीक है। और ब्लैडर एंड बाउल शुड बी एम्प्टी। मैट्रेस, योगा मैट जो हम लोग यूज करते ही है, लाइट एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफर्ड टू फैसिलिटेट इजी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो कोई कोई करते हैं क्या, योगा प्रैक्टिस के टाइम में बहुत टाइट कुछ पहनते हैं। तो टाइट कपड़ा नहीं चलता है योगा में। थोड़ा सा लूज फिटिंग्स जो होता है ना, वो बहुत कंफर्टेबल होता है। तो लूज फिटिंग कपड़ा पहनने से क्या होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आता है। जो स्ट्रेचिंग जब होता है ना, देखना जब तुम टाइट कुछ पहने हो तो उतना बॉडी स्ट्रेच नहीं होता है। थोड़ा सा लूज पहनने से स्ट्रेचिंग जो है वो अच्छी तरह से होता है। लाइक हैमस्ट्रिंग में बहुत प्रेशर आता है, टाइट पैंट कुछ भी टाइट्स पहनने से क्या होता है, हैमस्ट्रिंग में बहुत सारा प्रेशर आता है। तो योगा प्रैक्टिस के टाइम थोड़ा सा कंफर्टेबल पहनना चाहिए। Yoga should not be performed in a state of exhaustion, illness, in a hurry, or in acute stress condition. जिसका कोई हेल्थ इश्यू रहता है, फीवर रहता है, इलनेस रहता है, वीकनेस रहता है, उस समय योगा प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। In case of chronic disease, pain, cardiac problems, a physician or a yoga therapy should be consulted prior to performing yoga practices. ये तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी हमारे पास योगा सीखने के लिए आता है, तो फर्स्ट डे ही पूछना है उनका कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है,
ये है बहुत जरूरी एक है कि पहले दिन में ही पूछना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहिए, ठीक है। So yoga experts should be consulted before doing yoga practices during pregnancy and menstruation. ये तो लास्ट डे ही चर्चा हुआ था कि प्रेग्नेंट लेडी जो होता है उन लोगों को लिए हम लोग बहुत सारे कुछ बोल सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू हेल्थ कंडीशन, हेल्थ उसका हेल्थ कैसा है से उसी हिसाब से हम लोग को बोलना है। During the practice session should start with a prayer. प्रेयर कैसे करते हैं, किस लिए हम लोग करते हैं? बिकॉज प्रेयर करने से हमारा माइंड फुल रिलैक्स हो जाता है, हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसलिए देखना हर सेशन स्टार्ट होता है प्रेयर से, एंड भी होता है प्रेयर से, ठीक है। Yogic practices shall be performed slowly in a relaxed manner with awareness of the body and breath. मतलब योगिक प्रैक्टिस जो है बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, तो दैट इज नॉट अ योगा। योगा एकदम रिलैक्स्ड वे पे होना चाहिए। जो योगा में क्या है, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जिम में बहुत कुछ वर्कआउट करते हैं, ठीक है, मगर उसमें हम लोग ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मगर योगा में जो हमारे जो ब्रीथ के ऊपर वो इम्पोर्टेंट है। इनहेलेशन, एक्सलेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिटेंशन। Breathing should be always through the nostrils unless instructed otherwise. योगा में ऑलवेज नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग होना चाहिए, नाक से ही ब्रीदिंग करना चाहिए योगा में, ठीक है। इनहेलेशन नाक से, एक्सलेशन नाक से। जिनमें बोला जाता है कि एक्सलेशन एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, तो दैट टाइम वी कैन डू दैट। मगर जिन टाइम में, ज्यादातर टाइम में इनहेलेशन एक्सलेशन नोज से ही होता है, नाक से ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है योगा में। योगा और जिम में ये एकदम डिफरेंट है। क्या होता है, जिम में हम लोग करते हैं तो ब्रीद आउट माउथ से करते हैं, मगर ये योगा में नहीं होना चाहिए। And do not hold the body tight or give undue jerks to the body. एकदम हम लोग जब कुछ भी आसना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी प्राणायाम, तो बॉडी को एकदम टाइट नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, पहले दिन में ही हम लोग जो भी आसना है नहीं कर सकते हैं, तो बॉडी को बहुत सारा प्रेशर देते हैं, तो वो पहले दिन में नहीं करना चाहिए। Perform the practices according to one capacity. हर लोगों का कैपेसिटी अलग होता है, सो प्रैक्टिस करना चाहिए खुद के हिसाब से कि हम लोग कितना कर सकते हैं, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। हम लोग जब किसी को सिखाते हैं तो उनके हिसाब से हम लोगों को सिखाना पड़ेगा। It takes some time to get good results, so persistent and regular practice is very essential. So yoga में क्या है, regular practice is very important. आज किया कल नहीं किया ये नहीं चलेगा, regular practice ये बहुत important thing है योगा में। There are contraindication, limitation of each yoga practice, and such contraindications should always be kept in mind. So, हर जो आसना होता है, हर एक आसना के contraindication होता है, वो ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है। Yoga session should end with meditation, deep silence, sankalpa, shantipat, etc. So yoga जब हम लोग
प्रैक्टिकल जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सो एंड होना चाहिए मेडिटेशन में। और प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन, योग निद्रा इज वेरी गुड। योग निद्रा करने के बाद वो सेशन एंड करना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? Bath may be taken only after 20 to 30 minutes of yoga practice. Food may be consumed only after 20 to 30 minutes of yoga practice. तो 20 से 30 मिनट के बाद ही हम लोगों को कुछ खाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो नहाना चाहिए, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ये ठीक है एकदम इतना तक? यस मैम। तो 1.4 थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा एकदम बोल लेते हैं। तो क्या क्या होता है देखना, हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सभी के अंदर, ठीक है। 3 गुण क्या क्या है? दैट इज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। एक देखना, ये 3 गुण एक दिन में, हर एक टाइम में, हर एक पर होता ही है, सबके अंदर ये 3 गुण होता है, ठीक है। तामसिक मतलब क्या है? जब हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, आज कुछ काम करने का, अभी कुछ काम करने का मन नहीं है, दैट इज तामसिक गुण। तमगुण, तमगुण के कारण हम लोग लेजी हो जाते हैं। राजसिक क्या होता? हम ही राजा है, हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है, हमारे आगे कुछ भी ठीक नहीं है। ये कैसे, किस लिए होता है? दैट इज रजगुण के कारण होता है कि नहीं सबके बीच में। और क्या है? सत्विक, सत्विक मतलब सतगुण। ये एकदम मन में कुछ लालसा भी नहीं रहता है, हिंसा भी नहीं रहता है, एकदम सिंपल है, दैट इज नोन एज सत्विक। देखना, हम लोग एक दिन में कभी लेजी हो जाते हैं, कभी खुद को राजा समझते हैं, और कभी मन में दया आता है, कुछ दान करते हैं, दया तो मन में आता ही है। किस लिए आता है? वो सतत गुण के कारण आता है। इसलिए हमारे अंदर 3 गुण है, इसलिए इसको बोला जाता है त्रिगुणा, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। इस यहाँ पर डिटेल्स नहीं बोला गया है, तो एक बार तुम लोग लिख लेना। सात्विक क्या है? सतगुणी, दैट इज सात्विक। रजगुणी, दैट इज राजसिक। तामसिक, तमगुणी। तमगुणी जो होते हैं वो, उनके मन में लालच होता है, लेजीनेस होता है, दैट इज तमगुण, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो थोड़ा थोड़ा करके। रजगुणी क्या है? हम लोग जब खुद को राजा समझते हैं, दैट इज रजगुणी। सतगुणी क्या है? जब हम लोग, हमारे अंदर दया, दान भाव आता है, दैट इज सतगुणी, ठीक है। ये त्रिगुणा थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस मैम। तो उसके बाद आता है अंतःकरणा चतुष्टया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्ता। ये है अंतःकरणा चतुष्टया। चतुष्टया मतलब चतुष मीन 4 तो ही है ही, तो इसलिए मन, मन मतलब माइंड, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये है अंतःकरणा चतुष्टया। उसके बाद आता है त्रिशरीरा, मतलब जो त्रिशरीर क्या क्या होता है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो शरीर को त्रिशरीरा, शरीर को हम लोग कोशा बोलते हैं। आनंद, अन्नमय कोशा,
प्राणमय कोशा, मनमय कोशा, बीजनमय कोशा, आनंदमय कोशा। ये है कोशा। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बिकॉज कोशा में बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा ये अभी त्रिशरीरा जो है, स्थूल शरीरा मतलब अन्नमय कोशा जो बाहर है। ओके, दैट इज ग्रॉस बॉडी, अन्नमय कोशा। सूक्ष्म शरीर मतलब सबटाइल बॉडी में क्या क्या आता है, दैट इज प्राणमय, मनमय एंड बीजनमय कोशा। एंड कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इज द अल्टीमेट ऑफ योगा, माने शरीर जब एकदम सच्चित आनंद में रहता है, दैट इज नोन एज आनंदमय कोशा। जब मन और शरीर सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज आनंदमय कोशा। ठीक है, सो ग्रॉस बॉडी है अन्नमय कोशा। सूक्ष्म शरीर क्या क्या है सबटाइल बॉडी में, प्राणमय, मनमय, बीजनमय एंड लास्ट है आनंदमय कोशा। तो 5 कोशा है, पंच कोशा है हमारे अंदर। ठीक है, एक शरीर में, पूरा शरीर में हमारे अंदर जो 5 भाग है कोशा का, दैट आनंदम, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बीजनमय, आनंदमय। ठीक है, इतना तक ठीक है? किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, आस्क। मैम फिर इसमें से मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लाइक वो लोग क्या पूछेंगे इसमें? उसमें पूछेंगे, अभी तो थोड़ा सा बहुत कुछ पढ़ना है, एग्जाम के आगे सब कुछ होगा कि कैसे प्रश्न होगा। पर अभी जिस हिसाब से क्लास हो रहा है ना, क्लास जब तुम लोग इसका रिकॉर्डिंग जब मिलेगा वो क्लास फॉलो करना। क्लास के हिसाब से ही प्रश्न आता है, स्टडी मटेरियल से ही सब कुछ प्रश्न आता है। मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल से बाहर भी कुछ मैं बोलूंगी, वो थोड़ा सा नोट डाउन करना है। ठीक है, सो तो मैंने मैम जो, हाँ बोलो। तो मैम फिर मैं जो यही वाला जो है, यही वाला मैं प्रिंट आउट ले लूँ ना सारा? हाँ ये हाँ जो हाँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं इसके अलावा और भी जो है वो सब नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये जब योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का जो लेवल 1 का जो स्टडी मटेरियल मिला है वो प्रिंट आउट कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है। और जो भी कुछ है वो पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है, वो ऐसे ही पढ़ना है और ये अच्छे तरह से पढ़ना है स्टडी मटेरियल। ठीक है, ओके मैम, और मतलब मैं यही जो ठीक भी है। कुछ बोलूंगी पढ़ाने के टाइम में, जो स्टडी मटेरियल नहीं है तुम्हारे जो लेवल 1 में, थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। तो और किसी का कुछ प्रश्न है, कोई डाउट है? देविका, शतविशा, इशिका, कल का एकदम ठीक था ना, डाउट नहीं था ना कल का जो हुआ था? ओके, सो हम लोग आज इतने तक ही करते हैं। सो पंचकोशा के बारे में कल हम लोग बहुत कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, एकदम हम लोग टाइम में क्लास में आ जाएंगे। सो पंचकोशा में, पंचकोशा के बारे में जानना है, बिकॉज पंचकोशा थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले रहता है, तो धीरे धीरे सब क्लियर होता है। और मैं अभी भी बोल रहे थे अष्टांग योग क्या है, थोड़ा सा क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़ चुके हैं तो बीच क्लास के बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा प्रश्न, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो हम लोग कर लेंगे। देखना बहुत आसान होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बहुत कुछ डाउट्स क्लियर होता है, बहुत कुछ जानने के बारे में जान सकते हो। तो इसलिए अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो 2 वीक्स जाने के बाद थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन होगा, तो देखना बहुत इजी रहता है। ठीक है, ओके, so let's conclude the session with a prayer. State your spine, keep close your eyes and chant with me. Om
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your palm. Make it little bit warm and put on your eyes. And gently open your eyes. Okay, thank you everyone for joining this session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.